Ballon d'Or. When we talk about one of the most prestigious individual awards, that is the Ballon d'Or. ऐसा भी एक टाइम पे कहा जाता था, इवन कि आज भी कहा जाता है कि अगर ये अवार्ड जीत गए तुम्हारा नाम सुनहरे अक्षरों में इतिहास में लिखा जाएगा। लेकिन आज के डेट में कैसे ये ट्रॉफी और इसकी वैल्यू दम घुट रही है, उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। वेलकम टू अनदर वीडियो। आई एम रिचिक, यू आर वॉचिंग द मज एंड लेट्स डिस्कस अबाउट ऑल द chaos that is happening around this Ballon d'Or ceremony that just happened. ये वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ सभी फैन से रिक्वेस्ट करूंगा, whether you are a Real Madrid fan or a Barcelona fan, कि don't spread hate on Rodri. Trust me, I am a Madrid fan, but my respect for Rodri, I love that midfielder, the way he plays, the contributions he made for City. Even though City is a rival team, but I will request you guys that guy doesn't deserve any hate. He won the award that was given to him by the UEFA and FIFA, and trust me, he did not have anything to do in it. He played where he should. He contributed to his team. He contributed to Spain, City, and maybe deservedly he got that award. And there is no harm in a midfielder winning that award. But अगर हम बात करें इस institution की, about this France football, about UEFA collaborating with France football this time, and what shit happened in this Ballon d'Or. I will try my level best कि मैं तुम्हें as a neutral चीज़ें बताने की कोशिश करूँ, ताकि तुम्हें ये ना लगे कि मैं एक Madrid fan हूँ इसलिए मैं bias हो रहा हूँ या फिर something like that. अब इससे पहले कि मैं बात करूँ कि कौन जीतना चाहिए था या फिर कौन नहीं जीतना चाहिए था, let's talk about the entire list that came out and one of the most odd thing that I have seen about this Ballon d'Or list. सबसे पहले बात करते हैं उन players की जो इस लिस्ट में है ही नहीं. Players like Rodrigo, players like Jamal Musiala. I mean, these players left out of the entire list and it surprises me so much. In the last season, you know, Jamal Musiala is a wonderful talent. Rodrigo is a clutch player for Madrid, and still these guys couldn't even make it into the top 30. I mean, when we see these lists, we think that we are seeing one of the most capable players that are present in the entire world, but are they actually? अब देखो, अगर मैं लिस्ट के अंदर जाऊँ, सबसे मजाक वाला चीज मैं तुम्हें बताऊं, नंबर 17 में स्टैंड करते हैं फेडेरिको वेलवर्दे एंड उनसे ऊपर रैंक करते हैं झाका, डैनी ओल्मो, निको विलियम्स. आई मीन, देखो, मैं कोई भी प्लेयर को डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रहा, बट फेडे वेलवर्दे इज द हार्ट ऑफ रियल मैड्रिड. इट्स जस्ट सेइंग लाइक भाई जूड बेलिंगम मजदूरी करता है, इसके लिए उसका कोई वैल्यू नहीं है, एंड सिमिलरली फेडे वेलवर्दे भी मजदूरी करते हैं, इसके लिए उसके लिए भी कोई वैल्यू नहीं है. इफ यू आर एक्चुअली टेकिंग इनटू अकाउंट द मिडफील्डर्स, इफ यू आर एक्चुअली गिविंग प्रायोरिटी टू द मिडफील्डर्स, हाउ कम फेडेरिको वेलवर्दे couldn't make into a higher spot? आप 17th रैंक दे सकते थे, लेकिन आप इतना तो मेक श्योर करो कि जो प्लेयर्स उनसे ऊपर है वो प्लेयर्स डिजर्वेडली वो स्पॉट क्लेम कर सकते हैं या फिर नहीं. आई मीन, व्हेन यू स्पीक अबाउट प्लेयर्स, भाई ये लिस्ट जब आप देखोगे ना, मैं अभी तक टॉप 10 में नहीं आया हूँ, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द टॉप 10, इट्स शैम्बोलिक, इट्स so much shambolic. And भाई देखो, Ballon d'Or is a award that is given on individual talents, right? It should not actually always bring in that कि कौन national team के लिए कितना किया या फिर UCL के लिए कितना किया है. अगर मैं वैसे ही बात करूँ ना, individual awards are given on the basis of how many trophies you have won, how many goals you have scored, how many tackles you have made, how many saves you have made. And इसीलिए शायद आप देखते हो कि maximum time strikers को ही ये trophy मिलता है, क्योंकि goals are something that can be highlighted more and more and more, and उनसे PR भी ज्यादा मिलता है. लेकिन अगर मैं बात करूं टॉप 10 की, हाउ कम, एज अ मैड्रिड फैन आई एम टेलिंग यू दिस, हाउ कम किलियन एम्बापे इज रैंकिंग अबव लामिन यामाल, टोनी क्रूज, लौतारो मार्टिनेज. आई मीन, भाई ये क्या हुक के ये लिस्ट बनाया है भाई. किलियन एम्बापे इन द लास्ट सीजन, नो डाउट ही हैज बीन एन एसेट टू PSG, बट भाई उसका कंट्रीब्यूशन भी तो देख लेते. PSG डिडंट इवन मेक इनटू द फाइनल्स ऑफ चैंपियंस लीग, एंड चैंपियंस लीग एम्बापे के लिए एक डिजास्टर था. ही कुडंट इवन कंट्रीब्यूट व्हाट ही शुड हैव कंट्रीब्यूटेड इन द चैंपियंस लीग. एंड वैसे अगर आप बात करो, एम्बापे के फॉर्म में डिप आज से नहीं आया है. फ्रॉम द लास्ट UCL ओनली एम्बापे हैज बीन डिपिंग इन हिज फॉर्म, एंड UCL तो आप लास्ट ईयर के बेसिस पे दे रहे थे ना. Yamal was in his red hot form. Lautaro Martinez did everything he could with his club. Yes, he couldn't win the trophies, लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं है कि आप किसी को भी just because उसका PR ज्यादा है आप उसे लिस्ट पे ऊपर रख दोगे. 6th
in the list for Kylian Mbappe is one of those funny things that I have, you know, encountered in this Ballon d'Or. मैं Madrid fan में ये चीज कह रहा हूँ, ठीक है? तो don't ever think that I judge trophy cabinets on the basis of this. लेकिन अगर अब हम बात करें कि top 5, देखो Erling Haaland on the number 5, I cannot argue much about it. Yes, तुम कह सकते हो कि भाई important matches में clutch नहीं करता है, important matches में score नहीं कर सकता है, but still his stats speak for him and that stats make him get a spot in the top 5. अब देखो तुम कह सकते हो कि top 5 में नहीं हो सकता था, 6 में हो सकता था, 7 में हो सकता था. That is individual opinions and मैं इसमें ज़्यादा कुछ कमेंट नहीं करने वाला. लेकिन we are going to come into the top 4 now. Danny Carvajal, Jude Bellingham, Vinicius Junior, Rodri. According to me, all the 4 players deserve a Ballon d'Or. Jude Bellingham also deserves a Ballon d'Or. If you don't think so, trust me, आप इस Ballon d'Or पे जो hype बनाया हो कि midfielders do deserve the respect for the hard work they put in. Bellingham puts hard work maybe more than any player in any other team. Trust me on that. And मजदूरी करते हुए तो तुम इस सीजन में बेलिंगम को देख रहे हो. Last season for Bellingham was absolutely top notch. Trust me on that. लेकिन if we talk about the controversy that happened within Rodri and Vinicius Junior and Danny Carvajal, surprisingly ज़्यादा कोई Danny Carvajal के लिए cheer नहीं किए थे उस दिन, but I think Danny Carvajal had a very fair shot at the Ballon d'Or. I mean, अब हम थोड़ा बात करते हैं कि क्राइटेरियाज के ऊपर कि कौन से क्राइटेरिया के बेसिस पे ये अवार्ड्स दिए गए हैं. अब देखो, अकॉर्डिंग टू फीफा प्लेयर्स के इंडिविजुअल स्टैट्स मैटर करते हैं, हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस, हिज ट्रॉफीज, एवरीथिंग मैटर्स एंड एंड में मैटर करता है फेयर प्ले. ये फेयर प्ले कितना आयरॉनिक चीज है और कैसे ये प्लेयर टू प्लेयर वैरी कर रहा था इन द एंटायर लिस्ट या फिर इन द एंटायर सेरेमनी. ये चीज मैं तुम्हें बस 2 मिनट बाद समझाता हूँ. उसके पहले मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर लेता हूँ. रॉड्री एंड विनीशियस, ये दोनों प्लेयर्स ही बैलन डॉर डिजर्व करते थे, नो डाउट अबाउट दैट. लेकिन द क्राइटेरिया दैट आई जस्ट टोल्ड यू अबाउट, इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग डैनी कार्वाहाल deserves the Ballon d'Or more than anyone. I mean, मुझे ना एक चीज समझ में नहीं आता है, जब ये लोग अपने क्राइटेरियाज को सेट करते हैं, क्या जर्नलिस्ट को ये क्राइटेरिया बाद में पता चलता है? I mean, when the journalists make their list, I mean, एक जर्नलिस्ट का मैं नाम सुन रहा था, उसने विनीशियस को टॉप 10 में भी नहीं रखा, लाइक किसी ने शायद टोनी क्रूज को अपने टॉप 2 में रख दिया होगा, बट वॉट एवर लिस्ट दे मेक, आई मीन विच जर्नलिस्ट गो ऑन एंड मेक द लिस्ट. अगर आपके ऐसे जर्नलिस्ट लिस्ट बना रहे हैं, देन तो आपका बैलन डॉर लोग बोलेंगे ही ना रे, because it is brainless dead Ballon d'Or bhai. When you are setting the rules for someone, you cannot just go on and change the rules according to the person who is going to win that Ballon d'Or. You have to understand that. अब आते हैं इस पूरे chaos की रियल मैड्रिड ने अटेंड नहीं किया सेरेमनी, रियल मैड्रिड ने बॉयकॉट कर दिया, यू नो, यूएफए का इंटरवेंशन एंड एवरीथिंग. अब देखो, फ्रॉम स्टार्टिंग विथ यूएफए का इंटरवेंशन, यूएफए और रियल मैड्रिड के रिलेशंस ऐसे अच्छे नहीं हैं. वी ऑल नो दैट बिकॉज रियल मैड्रिड वांटेड टू क्रिएट द सुपर लीग which is directly a competition to the UCL. एंड इसीलिए तुम देख भी सकते हो कि रियल मैड्रिड को हमेशा जब भी वो प्लॉट से निकाला जाता है कि कौन से ग्रुप में वो रहेंगे या फिर कौन से फिक्सचर्स में वो रहेंगे, रियल मैड्रिड मैक्सिमम टाइम एंड्स अप हैविंग द टफ फिक्सचर्स. द बायसनेस अगेंस्ट रियल मैड्रिड इज वेरी रियल, बिकॉज एक चीज तुम्हें समझना होगा कि यूएफए डिड नॉट वांट अ रियल मैड्रिड प्लेयर टू विन दिस. अब यहाँ पे तुम कह सकते हो कि भाई ये चीज रिग्ड नहीं है, ही डिजर्व्ड इट. यस, ही डिजर्व्ड इट, रॉड्री डिजर्व्ड इट. लेकिन मुझे आप ये चीज़ बताओ कि जब रॉड्री ने ट्रिबल जीता था तब उस रॉड्री को क्यों नहीं दिया गया था? तब आपका दिमाग में नहीं आया कि भाई मिडफील्डर्स भी इंपॉर्टेंट है, तब आपको मेसी को देना था, आपने दे दिया. मैं ये नहीं कह रहा कि मेसी डिजर्व नहीं करता था, लेकिन भाई आपको इस सारे याद आया कि मिडफील्डर्स भी खेलते हैं. एंड जब विनीशियस जूनियर वाज जस्ट अबाउट गोइंग टू विन द ट्रॉफी, तभी आपको याद आया ये चीज. 7 या 8 घंटे पहले आपने ये बोला कि नो, लाइक रॉड्री इज गोइंग टू विन इट. एंड ये भी कैसे पता चला? मैन सिटी से, अकॉर्डिंग टू सोर्सेज व्हाट आई हर्ड. तो देखो, दिस ऑल ओवर द ड्रामा दैट हैपेंड, दैट is very shambolic. And इसके बाद Real Madrid boycotted the entire ceremony. That was the wisest decision they could have ever taken. Trust me on that. अब मैं तुम्हें कहता हूँ क्यों. Real Madrid could have gone there, sat in the entire gala, watched their players being mocked off in the entire live TV, and then they would have been just sitting there watching the TV clueless. उनके सामने शायद रॉड्री को भी अवार्ड दे दिया होता एंड विनीशियस would have been looking at him and thinking, भाई मुझे तो बोला गया था कि मैं जीतने वाला हूँ. मुझे पता है कि ये चीज़ होता है कि 7 दिन पहले बोल दिया जाता है कि आप जीतने वाले हो, so you should come on.
एंड मुझे एक चीज़ बताओ, अगर रियल मैड्रिड को ये चीज़ पता होता कि रॉड्री जीतने वाला है, अगर रॉड्री को 7 दिन पहले ये चीज़ बता दिया होता, वुडंट रियल मैड्रिड हैव कैंसल्ड दैट ट्रिप वेरी अर्ली ओनली? ये क्यों होगा कि गाला के बस 7-8 घंटे पहले ये चीज़ कैंसिल हुआ होगा? मैं तुम्हें कहता हूँ क्या हुआ है। आई डोंट हैव एनी प्रूफ, बट दिस इज द थ्योरी दैट आई थिंक ऑफ। रियल मैड्रिड को बोला गया था कि विनीशियस जूनियर इज गोइंग टू विन इन ऑर्डर टू क्लिक बेट देम। उनको वहाँ पे बुलाते, फिर अगर स्टेज पे वो रॉड्री को बैलन डॉर दे भी देते, रियल मैड्रिड couldn't have said a single word there, trust me on that. Thanks to Man City कि वो लोग आगे जाके बोल दिए रियल मैड्रिड को कि आपके साथ ये चीज़ होने वाला है। You don't know what they talked about, right? लेकिन ये चीज़ फ्लोरेंटिनो पेरेज को बहुत पहले ही समझ में आ गया था कि this is an entire plot that has been set up for them. So that is why Real Madrid did not go into the ceremony, and that was the wisest decision ever. Trust me on that. आपको बहुत यूट्यूबर मिल जाएंगे जो बोल रहे हैं कि भाई मेसी भी गया था जब रोनाल्डो ने जीता, रोनाल्डो भी गया था जब मेसी ने जीता था, लेकिन उस टाइम पे रियल मैड्रिड के साथ ये biasness नहीं हुआ। UEFA intervening in this Ballon d'Or created the entire mess. Trust me on that. And this is what you get when a certain organization is against your team. आपके players अगर deserving होंगे भी, Dani Carvajal, I am telling you भाई, Dani Carvajal, I would haven't have made a single message if Dani Carvajal would have won the Ballon d'Or. भाई वो बंदा deserve करता था. He went on and congratulated Rodri. What a great sportsmanship, but that guy deserved it more than anyone. If you ask me, even more than Vinicius. Vinicius could have won it because he clutched in each and every match last season. The contribution he made for Madrid and all. So that was on another level. But अगर आप उनके क्राइटेरिया के बेसिस पे जज करते हो तो भाई it got to be Dani Carvajal. And last point, fair play. मुझे एक बात बताओ, ये जो बेस्ट गोलकीपर या फिर कुछ अवार्ड मिला है एमी मार्टिनेज को, ये अवार्ड वैल्यू करता है, राइट? एमी मार्टिनेज जब वर्ल्ड कप में वो ट्रॉफी मिलने के बाद वो घटिया सेलिब्रेशन कर रहे थे, वो फेयर प्ले था। आपको एमी मार्टिनेज ग्राउंड पे हर जगह दिख जाते हैं कि वो प्लेयर्स को टॉन्ट कर रहे हैं, लोगों को इरिटेट कर रहे हैं, ठीक है, जाके उल्टा सीधा बोल रहे हैं, एंड देन प्लेयर्स एंड अप मिसिंग द पेनल्टीज, दिस दैट। लेकिन स्टिल एमी मार्टिनेज इज अ वेरी फेयर प्लेयर। ही डज एवरी फेयर प्ले दैट यू कुड हैव डन। मतलब आप लूनिन को दे सकते थे ये ट्रॉफी इफ यू एक्चुअली वेंट ऑन टू गो इनटू द फेयर प्ले। एमी मार्टिनेज इज अ वेरी गुड गोलकीपर। लूनिन क्लच्ड इन द लास्ट सीजन एज वेल, इफ यू हैव नॉट फॉरगॉटन येट। तो अगर फेयर प्ले एक्चुअली एक क्राइटेरिया होता, उस टाइम पे फेयर प्ले के लिए एमी मार्टिनेज सेकंड पे आ जाते, लूनिन फर्स्ट पे चला जाता। ट्रस्ट मी ऑन दैट, आई एम नॉट लाइंग अ सिंगल थिंग अबाउट दिस। एंड इसीलिए मैं ये चीज़ बिलीव करता हूँ कि दिस हैज़ बीन एन एंटायर प्लॉट by UEFA, by France Football की विनी को नहीं जिताना है because he belongs from Real Madrid. This is a politics, and that is the actual reason why Carlo Ancelotti was the first person who decided कि मैं नहीं जाने वाला। He knew that he will win the men's coach of the year, लेकिन फिर भी वो नहीं गए। He could have went there, gained the spotlight, but he did not. He understood the politics that was being played there, and this is what I have for you guys in this video. देखो, I hope that I did not sound biased when I talked about the UEFA, the France Football, about the Ballon d'Or, because ये चीज़ एक reality है। लेवेंडोस्की, अर्लिंग हालैंड, विनीशियस जूनियर, नेमार जूनियर, इन सब को Ballon d'Or से बाहर निकाला गया है, and that is a truth that needs to be told. And someone got to step up and tell it. You cannot just sit there and talk like other YouTubers कि भाई नहीं भाई कुछ भी गलत नहीं है। भाई रॉड्री को बैलन डोर मिलना सही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे सिस्टम में कुछ गलत नहीं है। At the end of the day, the votes are counted by France Football only. If they want it, they can tamper it. Just believe on that. ये election type का चीज़ है भाई। People vote. You are not going to see who is going to vote for whom. It can be made up. अगर इतने सारे बड़े बड़े फिल्म स्टार सुपरस्टार्स खरीदे जा सकते हैं, how not the journalist? How can journalists not be bought? Tell me. We all have come to a point where we realize everything that is happening right now. Barca fan, Madrid fan, doesn't matter. We all love football. We all want to see the deserving player win. So right now, supporting UEFA or backing UEFA, that नहीं UEFA ने कुछ गलत नहीं किया है, I think that's a shameless act to put on the internet. So this is what I had for you today. I know ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, but I think the truth needs to be told. So I will see you guys in the next one. अगर वीडियो अच्छा लगा सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, एंड नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आ रहा है। I will make sure of that. Sorry for the delay. मैं बहुत दिन से कुछ वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था due to some personal reasons. कॉलेज वगैरह भी स्टार्ट हो गए थे, but okay, I'm back now and I'm going to post regularly from now on. So do make sure that you subscribe the channel. I will see you guys in the next one. Until then, take care.